Assalamu alaikum. My name is Dr. Asmatullah and I am postgraduate trainee at Khyber Teaching Hospital, Peshawar, Pakistan. Today we will discuss history taking in ophthalmology, and my today lecture will mainly focus on ophthalmic history, and this lecture is intended for MBBS students, house officers and postgraduate trainee who are working in ophthalmology ward. History taking is a very important aspect in every field of medicine. हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक अच्छी सी हिस्ट्री लूँ, तो आज हम हिस्ट्री टेकिंग इन ऑफ्थल्मोलॉजी पे तफसीलन बात करेंगे. एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह everyone will understand and learn how to take a proper ophthalmic history. First question which arises in students' mind, that why the history is so important. उसकी एक वजह है. जब हम एज ए स्टूडेंट जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमारे पास कोर नॉलेज नहीं होता. हिस्ट्री के साथ कोर नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपके पास कोर नॉलेज नहीं है एक सब्जेक्ट का और आप हिस्ट्री ले रहे हैं और आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री ली है, लेकिन आप डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है अबाउट दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो आप डिजीज़ डायग्नोज नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो बड़ी अच्छी हिस्ट्री ली है लेकिन हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते. तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास कोर नॉलेज नहीं होता और वो इसको कोरिलेट नहीं कर सकते. तो हम हिस्ट्री क्यों लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द इम्पोर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री, व्हाई वी टेक हिस्ट्री इज़ टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जामिनर एंड पेशेंट. जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट और जो एग्जामिन कर रहा होता है पेशेंट को, यानी कि आप, इसमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है. हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसकी इटियोलॉजी क्या है. We will discuss each and every point in detail in the coming slides. Helps to focus on problem. Able to capture patient needs and indicators of investigation. अगर आपके पास एक मरीज़ आता है, उसकी आप हिस्ट्री लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी सोशो इकनॉमिक हिस्ट्री ली कि वो एक गरीब बंदा है, तो आप उसको जब इन्वेस्टिगेशन आप एडवाइस करेंगे तो आप उसके सोशो इकनॉमिक हिस्ट्री के बारे में आपने पहले सोचा होगा कि ये बंदा जो है ये गरीब है, ये पेशेंट, और ये अफोर्ड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन या नहीं कर सकता. तो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन डेवलपिंग countries like Pakistan, Bangladesh, India. Helps to determine level of impact of problem in life. Sometimes helps to diagnose or differential or provisional diagnosis with history alone is possible. Most of the time, if the physician or surgeon is competent enough and he has the core knowledge of the subject, then he can make a diagnosis or sometime some important provisional diagnosis only on history base. So this is the importance of history, why we take history. The first and the only step, अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आप पेशेंट से मिलते हैं, अगर आप पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं या उसकी एग्जामिनेशन करते हैं,
जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट कैसे करते हैं? इफ़ यू आर अ मुस्लिम, से इट लाइक दैट, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असमतुल्लाह है और मैं यहाँ पे बतौर ट्रेनिंग डॉक्टर के काम करता हूँ और मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा आपकी बीमारी के मुतालिक। आर you can introduce yourself in English if you are living in a or your patient is educated enough and he or she can talk English, then you can say it like that. Hello, I am Dr. Asmat. I am working here as a resident or as a training doctor and I would like to ask you few questions about your disease, or you can say that about your condition which can help us in management and further treatment of your disease. So the patient will be very happy to answer all your questions. So this is the first step. If the patient is of same gender, so you can shake your hand, or if he or she is an opposite gender, then it depends on the social dilemma of that region. If you are working in Pakistan or India or Bangladesh, so a male and female cannot shake frequently like two unknown people. Introduction. What is the importance of introduction? And what are the important things which you should keep in mind? You should have comfortable and welcoming interior settings. Be professional in all the ways. Prefer formal. Be formal with the patient. Don't smile too much. Don't laugh. And don't start गपशप with him. ज़्यादा गपशप वगैरह नहीं लगनी, बिल्कुल फॉर्मल रहना, ठीक है? Your posture and style matters. और अगर पेशेंट को एग्जामिनेशन के दौरान या हिस्ट्री के दौरान अगर कोई ऐसी बातें हैं जो कि उसको वो आंसर नहीं करना चाहता, तो उसको ज़्यादा इंसिस्ट ना करें। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है विद हिज और हर अटेंडेंट, तो अटेंडेंट को कमरे से बाहर भेज दें, तो उसको उससे सीक्रेटली जो कुछ भी पूछना है अपनी हिस्ट्री में तो पूछ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज़, विच वन इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कॉस्ट्यूम, दिस वन और दिस वन? So this is the most preferred costume while this is not the most preferred one. So your dressing matters. You should have proper overall, you should have stethoscope, or if as you are taking ophthalmic history, so you should have torch with you in your side pocket, polished shoes and clean nice dress. सो यूर ड्रेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट्स जब आते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो अक्सर ने ड्रेस अपना कॉलेज का जो ड्रेस होता है वो पहना नहीं होता, जो कि एक नेगेटिव इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर पे भी पड़ती है इससे, और अपने मार्क्स भी उससे उनके ख़राब हो जाते हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर योर ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट। हाउ टू स्टार्ट हिस्ट्री? First of all, greeting. Introduce yourself. Like मेरा नाम डॉक्टर असमत है और मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ पूछना चाहूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे उसके सवालों के जवाब देंगे। Always remember, you should be a good listener. You should be a good listener. You should talk less and let the patient tell you everything about his disease. You should have good communication skills. शर्माना नहीं है, पेशेंट को ऐसा फील नहीं कराना कि आप नए हैं, ठीक है? तो और आपको पेशेंट की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। यूज़ ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने ऐसे सवालात नहीं पूछने जिसका जवाब हाँ या नहीं में आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उससे पूछें अगर आँख में दर्द होता है या नहीं, तो वो कहेंगे होता है।
आँख में नज़र कम है कि नहीं, वो कहेगा कि नहीं है कम। तो नेवर आस्क ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड आपने पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूछना है कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपकी आँख में क्या तकलीफ़ है, देन ही विल टेल यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। कैन आस्क नॉन क्लिनिकल, नॉट ऑलवेज, बट उस वक्त जब आप चाहते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, यानी कि आप करते क्या हैं। दिस इज़ आ वेरी नाइस ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में आता है ये, लेकिन ये पेशेंट को एक किस्म का अपने साथ यूज़ टू कराने के लिए आप थोड़े से इनफॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ओनली द इंटेंशन शुड बी रिलैक्सेशन बिटवीन यू एंड द पेशेंट। शुड बी एबल टू कैटेगराइज रेलेवेंट और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मैं फ़लाना डॉक्टर के पास गया, मैं फ़लाने के पास गया, ये हुआ वो हुआ, कहानियाँ स्टार्ट कर लेते हैं जो कि इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। आपने रेलेवेंट और इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को बीच में से जुदा करना है, अलग-अलग करना है। शुड प्रोवाइड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द एग्जामिनेशन। आपने जब पेशेंट को एग्ज़ामिन करना है तो आपने पहले उसको बताना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इवन अगर आप पेशेंट की आइज़ में ड्रॉप डालना चाहते हैं तो उससे कहना है कि ये ड्रॉप है, इससे आपकी आँख नम हो जाएगी, या इससे आँख का प्यूपल जो है, जो पर्दा है वो खुल जाएगा। इस किस्म का पहले आपने उसको समझाना है पूरा, उसके बाद कोई एक्शन लेना है। शुड टेक कंसेंट बिफोर एग्जामिनेशन। आपने उससे इजाज़त लेनी है, लेकिन इसमें इजाज़त लेने में थोड़ा सा फ़र्क है। जब आप ग्रीटिंग करेंगे तो आप पहले से ही उसमें पेशेंट को ऑप्शन नहीं देंगे, यानी कि मेरा नाम डॉक्टर असमतुल्लाह है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आइज़ का मुआयना कर सकूँ, क्या आप बीए चाहते हैं, इस किस्म का आपने नहीं पूछना। हो सकता है कोई शरारती सा पेशेंट हो, नाटी मरीज़ हो, तो आपसे कह दे कि नहीं डॉक्टर साहब आप मुझसे क्वेश्चन ना करें, देन यू विल हैव नो ऑप्शन। उसने इजाज़त नहीं दी। आपने यूँ पूछना है, आई वुड लाइक टू एग्ज़ामिन और आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग योर डिजीज़, या मैं आपसे आपकी बीमारी के मतलब कुछ सवालात करूँगा, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप उसके जवाबात देंगे। तो आपने इस किस्म का वो करना है, कंसेंट लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। करना क्या नहीं है, आपने करना ये नहीं है कि अपने पेशेंट का नाम याद कर लें। जैसी वजह कि माई नेम इज़ अहमद, मेरा नाम अहमद है, तो आप उसे कहें कि आप जब भी उससे सवाल करें तो आप कहें अहमद। अगर आप से एज में बड़ा है तो उसको अहमद भाई कह दें। अगर आपसे अहमद जो है छोटा है तो बेटा कह दें। रिगार्डिंग मतलब एज के, तो वो किस उम्र का है तो आप उसको अहमद नाम से पुकारें, या जो भी उसका नाम है। पेशेंट के सीक्रेट किसी के साथ डिस्कस नहीं करें, नेवर। और अपने आप को प्रोफेशनल रखें, ज़्यादा हंसी मजाक की चीज़ें ना करें ड्यूरिंग टेकिंग हिस्ट्री। पेशेंट से गिफ्ट ना मांगे और डिस्क्रिमिनेशन ना करें। पेशेंट मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, पेशेंट क्रिश्चियन है, पेशेंट कोई और मसला है, पेशेंट को मेल है फीमेल है, कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। पेशेंट इज़ पेशेंट। Even if the patient is your enemy, he or she is patient for you. You will treat it, her or him, as it should be. Never do any assessments without consent. अगर आप कोई चीज़ किसी लिम्फ नोड देखना चाहते हैं तो आप कभी भी कंसेंट के बग़ैर आपने कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। नेवर डू एनीथिंग ऑन चाइल्ड विदाउट गार्डियन परमिशन। अगर बच्चा है तो उसके माँ बाप से जो है ना आप पूछ लें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं और कुछ वो चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। ये इम्पोर्टेंट है बहुत।
रिकॉर्डिंग ये है कि आप जो है इस तरह करें, आपके पास एक पेज होना चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए जिस पे आप अपनी जो बातें आप हिस्ट्री में पूछ रहे हैं वो अपने पास लिखते जाएं। ऑलवेज राइट इन सोप। सोप मीन सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स एंड प्लान। ये एक तरीका है एक प्रॉपर। पहले आपने उससे पूछा, फिर आपको क्या लगा, फिर उसकी असेसमेंट की कि मेरे जहन में जो बीमारी है, जो डिजीज़ है हिस्ट्री बेस्ड, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। फिर प्लान में आप क्या लिखते हैं, प्लान में फिर ये होता है कि आप उसके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं कि मैंने ये इन्वेस्टिगेशन प्लान में लिखी हैं, वो इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं, फिर आप फर्दर जाते हैं कि ये ट्रीटमेंट इसको आप शुरू कर देनी चाहिए। तो ये एक सोप जो है ये आप बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट और फिर प्लान। और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग टेकिंग हिस्ट्री, ये तमाम इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल्स के लिए हमारे पास, अगर आपके पास वाइट पेज है, पहले से फिल्ड नहीं है फाइल, तो आपने ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है। नोज़ियामैड जो फार्मूला है इसके मुतालिक आपने एन से नेम आता है, नेम ऑफ़ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने फर्दर हिस्ट्री आप आधा घंटा 1 घंटा लेंगे तो इसमें आप उसी नेम से ही पेशेंट को पुकारेंगे। उसके बाद है उसकी एज है। ठीक है, एज उसकी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर हम देखें ग्लायोमा जो है, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा चिल्ड्रन में होता है, कैपिलरी हेमेंजियोमा चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, तो इस किस्म की जो डिजीज़ें हैं वो एज से मुताल्लिक ज़्यादा एज उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देख लें तो ये ओल्ड एज में होती है, बेजल सेल कार्सिनोमा देख लें ओल्ड एज में होती है। तो एज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ेज़, अब रेटिनोब्लास्टोमा को देख लें वो छोटे बच्चों में होती है। तो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सम एरियाज द डिजीज़ इज़ एंडेमिक, वहाँ पे होती है पहले से। लाइक पेशावर के करीब जो वो है करक सिटी है, यहाँ में जो है यहाँ पे अक्सर पेशेंट वीकेसी के होते हैं, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के। lot of patient came from there with keratoconus, with advanced keratoconus. So address of the patient is very very important. Sex is important, ethnicity is important. For example, thalassemia major किन लोगों में कॉमन है? There are some areas in which thalassemia major is very common over there. तो then occupation is also important regarding different diseases, especially in cases of poisoning. अगर हम थोड़ा सा आई से हट कर जाएं, न्यूमोकोनियोसिस जो है, जो लोग कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ओल्ड एज में न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, या जो कोयले के कान में काम करते हैं तो उनको लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देयर आर डिफरेंट डिजीज़ेस। और अगर एक बंदा है, एक पेशेंट है, वो आता है आपके पास कि मुझे इचिंग हो रही है और जो है ना आइज़ में फन बड़ी सेंसेशन होती है, तो आप उससे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं? वो कहेगा कि मैं तो तनूर पे रोटियां पकाता हूँ। तो चूँकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन ही से पहले आप उसी बेस पे डायग्नोज कर लें कि इस बंदे को ड्राई आइज़ हो सकती हैं। तो ऑक्यूपेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ऑक्यूपेशन का भी आप पूछेंगे। मैरिटल स्टेटस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ एडमिशन, ये भी आप लिखेंगे। ठीक है, देन नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर नाम नहीं है किसी पेशेंट का
तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पेशेंट जो है ना ये है, क्योंकि वार्ड में बहुत सारे पेशेंट पड़े होते हैं। एज भी इम्पॉर्टेंट है टू कैटेगराइज द प्रॉब्लम, मैंने एग्जांपल दे दी। ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड कुछ इलाकों में एड्रेस में एंडेमिक डिजीज़ होती है। ऑब्जर्व पेशेंट स्टेचर, एबिलिटीज़ एंड अपीयरेंसेस, व्हाट टू आर नॉट टू गिव और डू। अगर ये पेशेंट को आई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसको कार्नियल ओपेसिटी है और उसको बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया हो रहा है, तो आपने बार बार जो है ना टार्च उसकी आँख पे नहीं डालनी, क्योंकि वो टार्च से तंग होता है, तो आपने ये नहीं करना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर एक पेशेंट है वो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली ठीक नहीं है इतना, या बच्चा है वो बोल नहीं सकता, इफ़ ही और शी इज़ अ चाइल्ड एंड ही और शी कैन नॉट टॉक, देन यू विल आस्क दीज क्वेश्चन फ्रॉम देयर गार्डियन, जो उसके करीब है। ऑलवेज रिमेंबर, अवॉइड लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट एब्रीविएशंस लिखें। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं विजुअल इक्विटी, तो आप जस्ट लिखें VA। अगर आप लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स, इतनी लंबी बात ना लिखें, बस एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं इंटीरियर चैम्बर, तो आप लिखें AC, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं चीफ कंप्लेंट्स, तो आप लिखें CC। अगर आप लिखना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, तो उसको लिखें HOPI। तो ऑलवेज शॉर्ट लिखें अपने, तो आपको समझ आ जानी चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है। दीज आर सम एब्रीविएशंस, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में आप इसको पढ़ लें। सिम्टम्स है कॉन्टैक्ट लेंस के लिए CLS लिख लें, ऑकुलर हिस्ट्री के लिए OH लिख लें, फैमिली हिस्ट्री के लिए FOH लिख लें। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ओवर हेयर एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन मेमोराइज इट। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स हैं इसमें, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट ऑकुलर हिस्ट्री, सिस्टेमिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन, social history and allergic history. We will discuss all these points one by one in detail. Chief complaints are a reason for visit. आप हस्पताल में क्यों आए? Why you come to the hospital? What were your complaints? What is your complaint? तो यू विल आस्क हिम। अगर उसने ज़्यादा दिन गुजारे हैं तो आप कहेंगे व्हाट वर यूर कंप्लेंट फॉर। तो वी कॉल इट चीफ कंप्लेंट आर रीज़न फॉर विजिट आर PC प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। पेशेंट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इन देयर ओन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कहेगा कि मुझे धुंधला धुंधला नज़र आता है, ठीक है, लाइक कि क्लाउडी होता है मेरी आंखों के सामने। तो इससे बहुत सी बातें इस बात से पता चलती है, या तो कॉर्नियल ओपेसिटी है माइल्ड सी, जो कि नज़र के सामने क्लाउड से बने होते हैं पेशेंट को। और चीफ कंप्लेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन पेशेंट ओन वर्ड्स। इसमें टेक्निकलिटी आपने यूज़ नहीं करनी, पेशेंट ने जो कुछ कहा आप उसी को लिख लें, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने। अगर पेशेंट कहता है कि मेरी आँख सुर्ख हो गई है, तो आप लिखे रेडनेस इन राइट आई, यू न लिखें कि कंजक्टिवाइटिस इन राइट आई, या कुछ और न लिखें, ठीक है। तो पेशेंट के अपने वर्ड्स इंग्लिश में लिखने हैं, सिंपल। इफ़ हैव मोर देन वन सिम्टम देन ऑर्डर इट अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। मतलब ये है
पेशेंट कहेगा कि मेरी राइट आँख में पहले नज़र थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी। ठीक है, तो पहले आपने लिखना है कि डिक्रीज विजन इन राइट आई। उसके बाद पेशेंट कहेगा कि उसके 4-5 महीने बाद मेरी आँख बाहर की तरफ आना शुरू हुई, तो आपने लिखना है बल्जिंग इन द राइट आई। ठीक है, और उसका टाइम भी लिखना है कि कितने महीने पहले। थर्ड, और डॉक्टर साहब ये 1 महीने से जो है ना मेरी आँख में दर्द शुरू हो गया है, तो आपने यूँ लिखना है डिक्रीज विजन, बल्जिंग राइट आई और प्रोट्रूजन ऑफ द राइट आई। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपने करना है। और फिर तीसरे नंबर पे आपने लिखा है पेन इन द राइट आई। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इसे कहते हैं। जो सिम्टम पहले स्टार्ट हुए वो अपने पहले लिखने हैं, जो बाद में स्टार्ट हुए वो अपने बाद में लिखने हैं। ठीक है, इट शुड बी शॉर्ट, स्पेसिफिक, क्लियर सेंटेंस। एम्बिग्विटीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ग्रेजुअल है, सडन है, आपको नज़र कम हुई, अचानक कम हुई या आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, आपने ये पूछना है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपने हर चीफ कंप्लेंट के बारे में यूं ही पूछना है। कहाँ पे आपको विच पार्ट, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट पेन की कंप्लेंट करता है तो आप उसे कहेंगे कि पेन दर्द किस तरह है। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्टाया है तो वो आईलिड की पेन की कंप्लेंट करेगा। अगर उसको वो कहता है कि मुझे आँख के अंदर दर्द है, तो हो सकता है वो सिलरी स्पाज़म की कंप्लेंट कर रहा, वो सिलरी स्पाज़म में की वजह से उसे पेन हो रहा हो। तो आपने पार्ट का पूछना है। और फिर आपने पूछना है कि एक आँख में मसला है या दोनों आँखों में मसला है। ये इम्पोर्टेंट है। राइट और लेफ़्ट को आपने लिखना है। अगर आप राइट और लेफ़्ट की एग्जामिनेशन करते हैं बाद में, अगर ये पेज है तो अगर आप कुछ बातें लिखेंगे, यहाँ पे साइंस लिखेंगे पेशेंट की कि वो है कि पेशेंट की फॉर एग्जांपल कंजक्टिवाइटिस है, तो यहाँ पे लिखे रेड आइज़, ठीक है, कार्नियल ओपेसिटी। तो अगर आप इस साइड पे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप राइट आई की बात कर रहे हैं। अगर पेज के इस साइड पे लिखेंगे सिम्टम्स, तो इसका मतलब होगा कि आप पेशेंट की लेफ़्ट आई की बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेज है, ठीक है, इसको आप एक इमेजिनरी लाइन से 2 में डिवाइड करें। अगर आप सिम्टम्स यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे आप सिम्टम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लेफ़्ट आई की बात कर रहे हैं। अगर आपने लेफ़्ट लिखा भी नहीं है तो इसका यही मतलब होगा। अगर यहाँ पे आप सिम्टम लिख रहे हैं या साइंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आप पेशेंट की राइट आई की बात कर रहे हैं। तो ये ऑफ्थल्मोलॉजी में अंडरस्टूड बात है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए राइट और लेफ़्ट का लिखना ज़रूरी है, वो अपने पास लिखा करें ताकि आपसे बाद में फिर आप भूल न जाएं। सिंस व्हेन, ये आपको जो मसला है, जो तकलीफ़ है, ये कब से है, और ये जो आपको तकलीफ़ है ये इसमें कम ज़्यादा तो नहीं होती कि ठीक हो जाती है फिर दोबारा आ जाती है, ठीक हो जाती है फिर दोबारा, या सीजनल तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो अक्सर सीजनल होता है। जब बाहर के मौसम में पोलन्स आते हैं ट्रीज से, तो उसमें जो है ना एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस केसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने ये भी पूछना है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ वाटरिंग एंड आई स्ट्रेन सम टाइम। देन आपने पूछना है कि रिकरेंस है कि नहीं है। तो वो कहेगा कि आफ्टर यूजिंग लैपटॉप फॉर 2 आवर्स बोथ आइज़ में 5 दिन से वाटरिंग और आई स्ट्रेन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पेशेंट को ड्राई आइज़ हो सकती हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबल
या प्रोविजनल डायग्नोसिस है। आप जब उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, डिटेल में देखेंगे तो आपको वही कुछ मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। ग्रेजुअल डिक्रीज विजन इन बोथ आइज, लेफ्ट आई मोर देन राइट आई सिंस 2 years। तो आपने इसको लिखना कैसे है? ग्रेजुअल डिक्रीज विजन इन ओ यू मीन्स बोथ आइज। OS mean left eye, OD means right eye, ठीक है। एंड सिंस 2 years, तो आपने इसको इस तरह लिखना है डॉक्यूमेंटेशन में। ग्रेजुअल डिक्रीज इन बोथ विजन इन बोथ आइज, OU देन स्लैश कॉमा एंड देन OS इज मोर देन सिंस 2 years, तो आपने यूँ लिखना है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेंट, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसकी आपने डिटेल लिखनी है इन यूर ओन वर्ड्स और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हो कहता है कि मुझे पेन होती है आई में। पेन किस तरह ज़्यादा हो जाती है या कब शुरू होती है? पेशेंट कहता है सुबह शुरू हो जाती है, शाम को कम हो जाती है। तो ये आपने सब कुछ पूछना है। पेशेंट कहता है कि मैं राइट की तरफ जब देखता हूँ तब पेन ज़्यादा हो जाती है, ये शुरू हो जाती है, और जब लेफ़्ट की तरफ देखता हूँ तो पेन कम हो जाती है। तो इन डिफरेंट गेजेस पेन कम या ज़्यादा होती है, तो ये भी आपने पूछना है। रिलीविंग सिम्टम क्या है, कम किस चीज़ से होता है पेन, या अगर पेशेंट की विज़न कम है तो आपने पूछना है कि बाज़ औक़ात जब पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट होता है सेंट्रल, तो पेशेंट की विज़न शाम को अच्छी हो जाती है और सुबह जब धूप निकलती है तो विज़न उसकी कम होती है, क्योंकि प्यूपल लाइट में कंस्ट्रिक्ट होता है और सेंटर में कैटरेक्ट होता है, तो पेशेंट को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता तेज़ रोशनी में, और शाम को उसको अच्छी तरह दिखाई देता है। तो ये आपने पूछना है। एनी कॉन्करेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स, कोई और सिम्टम तो नहीं है जो मेन कंप्लेंट है उसके कोई और सिम्टम तो नहीं है। हैव यू डन एनीथिंग टू सबसाइड दो सिम्टम्स, क्या आपने कोई इलाज किया है, खुद दुकान से दवाई ली है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन लिया। आजकल क्वैक बहुत सारे मिलते हैं बाज़ार में, बहुत सारे क्वैक अवेलेबल हैं, तो कोई भी कुछ भी अपनी आइज़ के साथ कर सकता है। तो एपिसोडिक है नहीं है, टाइप, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, लास्ट सबसाइड, तो ये सब बातें आपने पूछनी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। पेशेंट कहता है कि मुझे दिन में 3 दफ़ा आँख में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, कितने मिनट तक रहता है, कितने मिनट के बाद ठीक हो जाता है, क्या करके ठीक हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में और HOPI में आप मेडिकल टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीफ कंप्लेंट में आप मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आप सब कुछ लिख सकते हैं कि उसने ये इलाज किया था, ये किया था, वो किया, सब कुछ आपने लिखना है। तो इसके 2 फार्मूले हैं, एक है लॉफ्ट सी, लोकेशन ऑफ द चीफ कंप्लेंट, कहाँ पे पेन है, कहाँ किस आई में विजन कम है, ठीक है। ऑनसेट, कैसे शुरू हुआ, फ्रीक्वेंसी और अकरेंस। सबसाइड होता है बीच बीच में या चलता रहता है हर वक्त। टाइप एंड सिविरिटी, सेल्फ ट्रीटमेंट एंड इट्स इफेक्टिविटी, आपने ख़ुद कोई इलाज किया है कि बाज़ार से कोई दवाई ली हो। आजकल लोग बड़े ड्रॉप्स देते हैं जो कि गलत बात है। इफ़ेक्ट ऑन लाइफ एंड एसोसिएटेड फैक्टर, ये सब आपने पूछने हैं। इसके लिए एक और फार्मूला है फोल्डार्क जो है या जो है लॉफ्ट सी जो है, ये दोनों सेम है। तो आपने फ्रीक्वेंसी, ऑनसेट, लोकेशन, लेटरलिटी, राइट है लेफ़्ट है, ये पूछना है। ड्यूरेशन कब से है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और रिलीफ किस चीज़ से मिलता है, क्वालिटी ऑफ सिम्टम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल
पेन हिस्ट्री हम कैसे लेंगे? ऑनसेट ऑफ डिजीज़, पेन कैसे शुरू हुआ? तो मुझे ट्रामा हुआ या जो है ना मैंने कुछ मेडिकेशन यूज़ की उसके बाद पेन शुरू हुआ, ठीक है, तो आप इस किस्म का पूछेंगे। पोजीशन और साइड का आप पूछेंगे, कहाँ पे है, फिंगर से वो बताएगा, तो वो कहेगा कि आईलिड में है या अंदर है या पूरी आँख को मतलब फिंगर से ढांप के कहेगी कि पूरी आँख में है और सर में भी साथ में दर्द है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। क्वालिटी, नेचर एंड कैरेक्टर, किस किस्म का पेन है? इस किस्म का पेन है कि जिस तरह किसी ने छुरी से आँख के अंदर मारा हो, या डल पेन है, ठीक है, या इस तरह है कि थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है और फिर तेज़ होता 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 बहुत तेज़ हो जाता है। तो आपने क्वालिटी, नेचर और कैरेक्टर ऑफ द पेन पूछना है। रिलेशनशिप टू एनीथिंग आपने पूछना है। रेडिएट होता है कि नहीं, कहता है कि पेन आँख में शुरू होता है और ऑक्सीपिटल रीजन तक चला जाता है, तो ये रेडिएटिंग पेन है। और पेन के रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं? टाइमिंग, मोड ऑफ ऑनसेट, ट्रीटमेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स। आपने अगर ट्रीटमेंट ली है तो इसके साथ कुछ और सिम्टम तो चेंज नहीं हुए, ठीक है, और टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। The complaints are basically there are two types of visual complaints and non-visual complaints. Visual are sudden loss of vision, ब्लरी है या फोटोफोबिया है। और बाइलेटरल ऑब्स्क्योर विजन है। नॉन विजुअल कंप्लेंट्स में डिस्चार्ज है, पेन है, इचिंग है एंड स्वेलिंग है। तो ये चीज़ें आपने विजुअल और नॉन विजुअल में डिवाइड करनी है। इफ़ these complaints are not covered in the reason for visit in the chief complaints, then you can ask in the history of present illness. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपने कुछ कंप्लेंट्स जो हैं रिगार्डिंग ऑफ्थल्मोलॉजी आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर पेशेंट कंप्लेंट के साथ आता है कि मुझे हेडेक होता है, आई स्ट्रेन होता है एंड एस्थेनोपिया होता है, विच मीन्स eye strain or eye fatigue. These three complaints, headache, eye strain and eye fatigue, these complain to the near work, prolonged near work like computer use or incorrect refractive error. So you should keep these things in your mind. Flash and floaters are signs of retinal problems. अगर पेशेंट फ्लैशेज ऑफ लाइट एंड फ्लोटर्स, पेशेंट कहता है कि मुझे हवा में काले काले मच्छर नज़र आते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो यूँ कंप्लेंट करते हैं, मुझे हवा में मच्छर और मक्खियाँ नज़र आती हैं। तो दीज आर फ्लोटर्स। तो आपने फ्लोटर का कलर पूछना है, ब्लैक है या ट्रांसपेरेंट कलर के हैं। ट्रांसपेरेंट कलर में कलर के अक्सर होते हैं विट्रस, जब लिक्विफाई हो जाता है तो उसमें कुछ ओपेसिटीज़ होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट फ्लोटर्स देती है नॉर्मल पीपल में भी। लेकिन अगर कलर ब्लैक है तो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। रेटिनल डिटैचमेंट में होता है। डिप्लोपिया, अगर पेशेंट कहते हैं कि मुझे दो नज़र आते हैं, डबल विजन है, तो इट कैन बी मोनोकुलर डिप्लोपिया, बाइनाकुलर डिप्लोपिया। तो उसमें आपने फिर डिस्टेंट, नियर, इंटरमीडिएट और डायरेक्शन ऑफ गेज में कम या ज़्यादा होती है। तो मसल पाल्सीज़ में, एक्स्ट्राकुलर मसल पाल्सीज़ में डिप्लोपिया होता है। या अगर पेशेंट टीयरिंग, बर्निंग, इचिंग
ये 3 कंप्लेंट के साथ आता है, तो इसमें कार्नियल और कंजक्टाइवल इश्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फॉरेन बॉडी होती है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट क्या कहना चाहता है। तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड ग्लेयर। वो कहते हैं ना कहानियों में कि आंखें छुंदियाँ गई हैं, तो छुंदियाना जो है या ग्लेयर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये ग्लेयर है, इसको ग्लेयर कहते हैं। ठीक है। हेलोज अराउंड लाइट, ये हेलोज अराउंड लाइट है, ये लाइट है, लाइट के इर्द गिर्द जो है ना हेलोज हैं। ये इम्पॉर्टेंट साइन है डिफरेंट डिजीज़ का। तो हेलोज अराउंड लाइट, तो ये एक लाइट है, उसके इर्द गिर्द उसी कलर का एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड हेलोज। स्टार बर्स्ट, एक लाइट है, उससे स्टार की तरह इस तरह रेज गई हुई है, दिस इज कॉल्ड स्टार बर्स्ट। तो यू विल राइट इट लाइक दिस, पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ स्टार बर्स्ट व्हेन ही और शी इज लुकिंग एट लाइट। हेजी विजन, ये हेजी विजन है, जिस तरह बादल होते हैं, आँखों के सामने बादल आ जाते हैं, इस किस्म का, तो ये कार्नियल ओपेसिटी में जो है ना इस किस्म के कंप्लेंट के साथ पेशेंट रहते। तो आप लिखेंगे कि पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ हेजी विजन और द पेशेंट विजन इज़ हेजी। ये ब्लर्ड विजन है जो कि मायोपिया में अक्सर होता है और कैटरैक्ट में ब्लर्ड विजन है ये। ठीक है। ये जो है ये डिस्टॉर्शन है। ठीक है। डिस्टॉर्शन, अगर आप इसको देखें, इस खंबे को अगर देखें आप, इफ़ यू लुक एट दिस पोल, इट इज़ डिस्टॉर्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है। तो इसको डिस्टॉर्टेड विजन कहते हैं, चीज़ें टेढ़ी नज़र आती हैं, पेशेंट ये कहेगा। और दिस इज़ डिप्लोपिया डबल विजन, ये दो नज़र आते हैं, ये डिफरेंट कंडीशन में होते हैं। अगर एक आँख के अंदर 2 पीपल बने हुए हों, एक नॉर्मल पीपल हो अपना, वो किसी जगह पे ट्रामेटिक आयराडाटोमी हो या कोई और होल हो आयरस के अंदर, तो पेशेंट को फिर डिप्लोपिया की कंप्लेंट के साथ आते हैं। लुक एट दिस, दीज आर द फ्लोटर्स, ये ब्लैक हमें मुझे मच्छर नज़र आते हैं हवा में, तो ये रेटिना डिटैचमेंट की तरफ इशारा करते हैं। बाद लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं, ये इतने सीरियस नहीं होते। दिस इज़ अनदर एग्जांपल, ये रेड आई है। ठीक है। और सब कंजक्टाइवल हेमरेज इसको कहते हैं। ठीक है। लेफ्ट आई, पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ लेफ्ट रेड आई सिंस 2 days एसोसिएटेड विद वाटरिंग, फोटोफोबिया एंड पेन एंड डिक्रीज विजन। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके साथ करनी है। ठीक है। ये जो है 2 लड़के हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, और सामने जो गाड़ी आ रही है वहाँ से तेज़ लाइट से इसको फोटोफोबिया है। दे बोथ आर अफ्रेड ऑफ लाइट, दिस पेशेंट इज़ अफ्रेड ऑफ लाइट। डिफरेंट कंडीशन में फोटोफोबिया होता है। ये डिप्लोपिया है, दिस इज़ मोनोकुलर डिप्लोपिया। ये है हॉरिजॉन्टल बाइनाकुलर डबल विजन, 2 पेन हैं हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है। ये वर्टिकल बाइनाकुलर डबल विजन है, 2 नज़र आते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर हैं। और ये जो है ऑब्लिक बाइनाकुलर है। तो डिफरेंट मसल पाल्सीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोपिया होती है और डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लेंट होते हैं। ये वाटरिंग ऑफ द आईज है, वाटरी आई। वाटरिंग जो है, वाटरिंग और एपिफोरा, वाटरिंग ये है अगर इस तरह आई वाटरिंग करे तो इसको वाटरिंग करे कहते हैं। एपिफोरा इसे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा वाटरिंग हो, या जो है ना फेशियल नर्व पाल्सी में मोस्टली, कि यहाँ से स्पिल आउट हो जाए जब टीयर्स, तो इसको कहते हैं एपिफोरा।
like this is a picture of epiphora and this is a picture of watering. तो आप इस तरह लिखेंगे watering of the eyes या एपीफोरा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, ठीक है। नाउ दिस इज़ आरा। आरा जो है डिफरेंट डिजीज़ में आरा होता है, लाइक इन मिग्रेन हेडेक। आरा ये है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द हेडेक इन मिग्रेन पेशेंट को ये कुछ इस किस्म के सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। these different types of symptoms, it can be like some blurriness in the area, or he or she can see things in the field, तो इसको हम आरा कहते हैं, ठीक है। ये मिग्रेन इज़ योर फ्रेंड, sometime it attacks on you and you started having headache, and this is a very severe headache and it lasts for several days. This is a decreased vision in the center while the peripheral vision is okay. तो इसका मतलब है कि हमारी सेंट्रल विज़न जो है या तो कार्नियल ओपेसिटी है या डेंस कैटरेक्ट है सेंटर में या मैकुलर प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल विज़न डिक्रीज़ है और पेरिफेरल विज़न ठीक है। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ पास्ट ocular history. You will ask the patient about history of using glasses or contact lenses. This is very important in ophthalmology. If you are using glasses, since when, कब से आप इस्तेमाल कर रही हैं चश्मे या contact lenses? लास्ट यूज़, लास्ट चेंज एंड आप सेटिस्फाई हैं ग्लासेस के साथ या नहीं? हिस्ट्री ऑफ ट्रामा आपने ज़रूर पूछना है। आँख में कभी चोट तो नहीं लगी ज़िंदगी में? कभी छोटे जब बच्चे थे आप या बड़े थे, जब भी कभी चोट तो नहीं लगी आँख में? अगर लगी है तो कहाँ पे लगी है, किस चीज़ से लगी है और कैसे लगी है? आप दाखिल हुए थे अस्पताल में, नहीं हुए थे? आपने क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल की थी? डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? आपने ये सारे सवाल करने हैं। अगर आपने कंसल्टेशन किया है तो कहाँ पे किया? अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो वह ज़रूर मांगनी, आपने लिखनी है अपनी हिस्ट्री में कि ये प्रॉब्लम सन 2005 में ये हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर है तो कब से है, कब हुआ था, कैसे हुआ था और उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपने क्या इलाज लिया था, ये सब चीज़ें आपने पास्ट ऑकुलर हिस्ट्री में पूछनी है, जिसको हम बाकी वार्ड्स की हिस्ट्री में, बाकी फील्ड्स की हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री भी कहते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। If the patient has already consulted at another hospital and came for a review, then note down every test has been done. अगर उसके जितने भी टेस्ट हुए हैं तो आपने लिख लेने हैं या उसकी इंटरप्रिटेशन सिंपल और सादा अल्फाज में लिख लेनी है, ठीक है, या अगर कोई प्रोसीजर वहाँ पे हुआ है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पेशेंट का 1 महीना पहले विजुअल फील्ड हुआ है, हम्फ्री विजुअल फील्ड, एंड इट शोज़ आर्क्वेट स्कोटोमा इन 24/2, ठीक है। तो 24/2 इट्स अ टाइप ऑफ विजुअल फील्ड, उसमें सेटिंग होती है मशीन में, तो उसमें 24 जो है ना 24/2 जो है ना एक सेटिंग है, उसमें हमारे पास आर्क्वेट स्कोटोमा आ गया है। 1 महीना पहले किसी और हॉस्पिटल में हुआ, तो आपने ये लिखना है। हिस्ट्री ऑफ अंडर ट्रीटमेंट फॉर हर्पीज वायरस विद एंटीवायरल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। RBS, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल इज़ 90 एंड 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर चेक्ड 3 days बैक। अगर उसने RBS का टेस्ट किया है तो आपने ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करनी है, ठीक है। सिस्टेमिक हिस्ट्री, आपने सिस्टेमिक डिजीज़ के बारे में उससे पूछना है, क्योंकि डिफरेंट सिस्टेमिक डिजीज़ विल अफेक्ट योर
आइज़। ठीक है, अपनी ये सब चीज़ें पूछनी है। इसमें एक ऑक्यूलर हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट और बात है, अगर उसने कोई ड्रॉप्स यूज़ की हैं और आपसे कहेगा कि ग्रीन जो कैप वाली बोतलें हैं, ड्रॉप्स जो हैं, आई ड्रॉप्स जिनका वो ग्रीन है, लेट मी सेलेक्ट द ग्रीन वन। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली ऑफ आर्थोकोलिनर्जिक मायोटिक ड्रग्स जो हैं उनका जो कैप होती है वो ग्रीन होती है। या पाइलोकार्पिन इसके ले लें, पाइलोकार्पिन इज़ ए मायोटिक ड्रग विच कंस्ट्रक्ट द प्यूपल, उसका जो कैप होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि वो पाइलोकार्पिन उसने यूज़ की है। या अगर वो कहता है कि रेड है, तो रेड की जो है मोस्ट ऑफ द टाइम डाइलेटिंग जो ड्रॉप्स होती हैं उनका जो कैप होता है वो रेड होता है। या अगर पेशेंट कहता है कि येलो मैंने यूज़ किया है, येलो कैप की कोई ड्रग थी वो मैं यूज़ कर रहा हूँ या यूज़ की है, मुझे नाम नहीं आता, तो मोस्ट ऑफ टाइम वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि एंटी ग्लाकोमा मेडिकेशन है। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन से मेडिकल हिस्ट्री से पास्ट ऑक्यूलर मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाएगा। ये बेसिकली ड्रग हिस्ट्री में आता है ये जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने अभी बता दिए पहले से। या अगर पेशेंट कहता है कि ब्लू कलर की, येलो एंड ब्लू जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बीटा ब्लॉकर जो मेडिकेशंस हैं उन ड्रॉप्स के लिए ब्लू और वो कैप यूज़ होती है। और वाइट जो है अक्सर औकात या तो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं या कोई एंटीबायोटिक्स होते हैं या स्टीरॉइड्स जो हैं डेक्सामेथासोन या जो है इस किस्म की जो वाइट कलर की कैप उसमें यूज़ होती है। और ऑरेंज कलर की अगर है तो वो डार्जोलामाइड है। तो वो आपसे इन सिंपल क्वेश्चन से ही आपको पता चले कि वो कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है। एंड देन यू विल आस्क अबाउट द हाइपरटेंशन, क्योंकि उसमें हाइपरटेंशन रेटिनापैथी हो सकती है, थायराइड आई डिजीज़ इसमें प्रोप्टोसिस हो सकती है, डायबिटीज़ डायबिटिक रेटिनापैथी का एसोसिएशन इसके साथ। एस्थमा में अगर पेशेंट स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं तो उसमें कैटरेक्ट के चांसेस हो सकते हैं। आर्थराइटिस जो है इसमें पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं। स्ट्रोक में सेंट्रल रेटिनल वेन एंड आर्टरी ऑक्लूजन हो सकते हैं। या हार्ट डिजीज़ में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकती है। किडनी डिजीज़ में क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है बहुत, उसमें जो है ना पेशेंट की हाइपरटेंसिव रेटिनापैथी हो सकती है। और लीवर डिजीज़ के लिए जो मेडिकेशन यूज़ कर रहा है वो भी आइज़ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। आपकी जो सिस्टमिक उसकी डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट है विद ट्यूबरक्लोसिस और वो जो है ना एथम्ब्यूटाल यूज़ कर रहा है, तो इट कैन काज ऑप्टिक न्यूराइटिस और जो है ना ऑप्टिक नर्व डैमेज और रेटिनापैथी। द एथम्ब्यूटाल कैन काज रेटिनापैथी। तो आपने सब पूछना है। रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, आपने डिफरेंट सब सिस्टम्स देखने हैं। टू रिव्यू सिस्टम ऑफ इज लिस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम दैट कैन हेल्प द क्लिनिशियन डिटरमिन द स्टेट ऑफ पेशेंट इन जनरल हेल्थ। आइज़ आपने देखनी है, ईयर नोज थ्रोट देखना है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनिटोयूरिनरी, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल, स्किन एंड एलर्जी, इन तमाम की प्रॉब्लम्स प्लस इसके लिए जो मेडिकेशन वो यूज़ कर रहा है वो, और फिर उस मेडिकेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट सोचने हैं कि वो आइज़ में साइड इफ़ेक्ट तो काज नहीं कर रहे। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यू डिजीज़ रन इन द फैमिलीज़ लाइक मायोपिया और रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लाकोमा, कैंसर, कैटरेक्ट, स्ट्रैबिस्मस, एज़मा, थायराइड, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। Or you will ask the patient, is there any family member who has the same problem as you or specific type of syndromes? तो ये आपने पूछना है। लाइक रेटिनोब्लास्टोमा अगर है, कैंसर है, वो फैमिली में रन करती है और बहुत सारे सिबलिंग्स उससे अफेक्टेड होते हैं।
सर्जिकल हिस्ट्री में आपने पूछना है पेशेंट से कि आपने कौन सी सर्जरी की है, आईज की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, क्यों की है, कब की है और कहाँ पे की है। ठीक है, तो आपने ये सब बातें पूछनी है। स्पेशली आज फॉर एनी लेज़र ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन, यॉग लेज़र जो कि हम पोस्टीरियर कैप्सूल और आयराडाटोमी के लिए, पोस्टीरियर कैप्सूल एपेसिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या कोई लेसिक सर्जरी तो नहीं की। अगर कॉर्निया में प्रॉब्लम है तो आपने लेसिक सर्जरी का पूछना है, जो कि रिफ्रैक्टर एरर के लिए हम करते हैं, जिसको आम अल्फाज में आँखों का लेज़र कहते हैं, जिससे चश्मे उतर जाते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी अगर की है राइट आई में 1 ईयर बैक हॉस्पिटल में की है, किडनी ट्रांसप्लांट 5 इयर्स बैक हॉस्पिटल, तो आपने यूँ लिखना है। मेडिकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज यूज़ जेनेरिक नेम एंड ब्रैकेट में जो है ना आप ट्रेड नेम यूज़ करें। डोजेज लिखें कि एक कतरा दिन में 5 दफ़ा यूज़ करता है, 6 दफ़ा या 10 दफ़ा या घंटे घंटे बाद। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है और कब से यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, उनको ग्लाकोमा हो चुका होता है और उनकी टनल विजन होती है, ब्लाइंड हो चुके होते हैं, तो आपने ये सब चीज़ें पूछनी है। ठीक है, और आपने इस तरह लिखना है टीयर प्लस आई ड्रॉप्स QID, QID का मतलब है 4 वक़्त दिन में, इन OU मीन्स बोथ आइज़। ठीक है, 212 और इसमें क्या मतलब है कि वो 12 डेज से यूज़ कर रहा है। ठीक है, 2 कतरे 12 दिन से दोनों आँखों में 4 दफ़ा यूज़ कर रहा है। ठीक है, ज़ेलाटान आई ड्रॉप्स है OD, दिन में 1 दफ़ा दोनों आँखों में। ठीक है, वो कल से यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अगर बिल्कुल इसी तरह नहीं लिख सकते, आप भूल जाते हैं, तो खैर आप अपने अल्फाज में लिख लें, उससे भी कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे कुछ मेडिकेशन दिए हुए हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं। प्लेक्विनिल कैन काज डैमेज इन द रेटिना, रेटिनापैथी काज करता है। जेंटामाइसिन काज करते हैं एपिथेलियल टॉक्सिसिटी ऑफ द कॉर्निया। स्टीरॉयड कैटरेक्ट और ग्लाकोमा काज करते हैं। ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट्स के बारे में आपने पूछे हैं, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, या उसको जो है ना सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। बीटा ब्लॉकर यूज़र्स के बारे में पूछना है कि बीटा ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे। एनाल्जेसिक्स के बारे में पूछना है। ठीक है, सिल्डेनाफिल सिट्रेल मेल इन्हांसमेंट ड्रग जो है, इसके बारे में पूछना है। अगर आप कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं इंट्राकुलर, तो इससे ये है कि इसको ये जो है ना ये फ्लॉपी आयरस काज करता है, जिससे आयरस जो है वो फ्लॉपी हो जाता है, डायलेट नहीं होता और रबरी सा हो जाता है, तो सर्जरी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उससे आपने पहले पूछना है, तो उसके लिए पहले से आपने तैयार रहना है और प्रॉपर मेजर्स पहले से कर लेने हैं। सोशल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑक्यूपेशन आता है। ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करते क्या हैं। तो डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो बाज़ औक़ात ऑक्यूपेशन के साथ रिलेटेड होती हैं। व्हाट आर यूर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके मशग़ले क्या हैं। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, जब आप फ़ारिग होते हैं तो आप क्या करते हैं। कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़िक्र करते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, डू यू ड्राइव, ड्राइव आप करते हैं या नहीं करते। डू यू स्मोक, स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ये एपिथेलियल रीजनरेशन को स्लो करती है। अल्कोहल हिस्ट्री आपने लेनी है। यू स्ट्रीट ड्रग्स, कोई नशा वशा तो नहीं करते, चरस वर्स तो नहीं पीते, ये सब चीज़ें आपने पूछनी है। और कंप्यूटर यूजेस कितना है दिन में, आपका दिन में कितने घंटे यूज़ करते हैं, और अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर यूज़ करते हैं नहीं करते। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। एलर्जिक हिस्ट्री हमें जो है ड्रग्स एलर्जीज़ का पूछ लें कि मेडिकेशन के साथ कोई एलर्जी तो नहीं है, या फूड एलर्जी और इन्वायरमेंट का एलर्जी का पूछ लें। अगर ये चीज़ें हैं तो अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है तो इसमें आप फिट कर सकते हैं। ठीक है,
बर्थ हिस्ट्री अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी अगर है तो फुल टर्म था या प्री टर्म था, नॉर्मल डिलीवरी थी, नॉर्मल या जो है ना सीजेरियन डिलीवरी थी, सीजेरियन सेक्शन था, या फोरसेप्स यूज़ हुए थे, फोरसेप्स डिलीवरी, ठीक है, तो उससे आइज़ को डैमेज हो सकता है। बर्थ वेट कितना था, ठीक है, ये बिफोर 34 वीक्स था या मोर देन 34, प्री टर्म था या फुल टर्म था, इनक्यूबेशन में रखा था, कितने दिन रखा था, उसमें अगर हमने हाई ऑक्सीजन दी है तो उसे ऑक्सीजन से रेटिनापैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। मैटरनल इन्फेक्शंस का पूछना है, स्पेशली टार्च सीरोलॉजी है, उसको रूल आउट करने के टार्च इन्फेक्शन तो नहीं हुए थे। डिलेड माइलस्टोन, अगर चलना कब शुरू किया, भागना कब शुरू किया, सीजर वगैरह तो नहीं आए थे बचपन में, ये पूछना है। पेरेंटल कंसिक्वेंटी, पेरेंट्स जो हैं आपस में कज़न्स हैं या जो है ना पेरेंट्स एक दूसरे के पराए हैं। और एबगर स्कोर आपने करनी है, ठीक है, ये पीड्स में आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, पीड्स वाले आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दे दी है, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप डिटेल में सीख सकते हैं। तो एबगर स्कोर बच्चों में आपने करनी है। इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस हिस्ट्री है, कौन से टाइप के रिजिड हैं या सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज का उसके पास बॉक्स है तो वो मटेरियल का भी पूछ सकता है। मॉडलिटी का पूछना है, आप क्यों यूज़ करते हैं, फैशन के लिए यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक रीज़न है, या आपकी रिफ्रैक्टिव एरर है, ये पूछना है। और कब से यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस के लिए या हर वक्त यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉर्निया को नुकसान पहुंचाती हैं, डैमेज करती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सलूशन वगैरह, कौन सा सलूशन उसमें यूज़ करते हैं। अगर केराटाइटिस का पेशेंट है तो आपने कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री ज़रूर लेनी है डिटेल में। स्लीप करते हैं इस लेंसेज के साथ या नहीं, ये चीज़ें साफ़ कैसे करते हैं, ये सारे मेथड आपने पूछने हैं। और लेंस कब से यूज़ कर रहे हैं, चेंज किए हैं कि नहीं किए। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज. So the questions which you should ask from the patient included what type of lens are they. There are multiple type of lenses which are available in the market, and every lens has its own complication, like soft contact lenses, gaze permeable contact lenses, toric contact lenses, which are basically used for astigmatic errors, and bifocal lenses which are used for near and far vision. How old are your contact lenses? It's also a very important question which you should ask. When did you buy the contact lenses and start using it? So every contact lens has its expiry date. और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात जो सॉफ्ट कंटेक्ट लेंसेज होती हैं उनमें स्मॉल सा टीयर बन जाता है at the periphery or in the center during removal and using of contact lens. So उस टीयर से बाज़ औक़ात corneal trauma हो जाता है which can lead to keratitis and further complications. Who prescribed the lenses? Lenses किसने prescribe की हैं? Because we have contact lens specialists in the field of ophthalmology, and these prescribe and fit the lenses for specific patient. How long do you usually wear the lenses each day? आप दिन में कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं? And how many days per week? This is also very important. If the patient is usually using it, so it can cause corneal ischemia and corneal warpage, which is a condition in which this condition is included in the complication of contact lenses. Our next question है, what is the longest that you will wear your lenses? क्या आप कब तक ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने दिन तक इस्तेमाल किए, ठीक है।
when did you put your contact lenses in today? What cleaning solution do you use? When was your last contact lens after care? What is your next after care check schedule? ये सारे क्वेश्चन आपने contact lenses के मुतालिक पूछने हैं. How do you had to stop contact lenses wear for any reason, even for a short time? हाँ, आपने कोई contact lenses को यूज़ करना स्टॉप तो नहीं किया बीच में, क्योंकि बाज़ औक़ात contact lenses की वजह से पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, जिससे बड़े पेपिला बन जाते हैं और द अपर मोस्ट ऑफ द टाइम अपर लीड पल्पिब्रल कंजक्टिवा पे. तो उसके लिए बाज़ औक़ात पेशेंट को फिर हम प्रेस्क्राइब करते हैं कि एडवाइस करते हैं हम कि कॉन्टैक्ट लेंसेज को स्टॉप कर लें फॉर द टाइम बीइंग. व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज? आप कब से कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस which you should ask the patient about the contact lenses. तो आपने ये सब सारे सवालात करने हैं पेशेंट से और पेशेंट को से ये सब पूछना है. तो दिस वाज द हिस्ट्री रिगार्डिंग ऑफ्थल्मोलॉजी. ऑफ्थल्मोलॉजी में के लिए के लिहाज से हम हिस्ट्री यूँ लेते हैं. उसके बाद फिर एग्ज़ामिनेशन का पोर्शन आता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. फ़िलहाल के लिए जो है हम ये कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू दिस लेक्चर. प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद योर क्लास फेलोज़ and ophthalmology residents, house officer and students, and remember me in your prayers. Thank you very much. Thanks a lot. Be in contact with me.